A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12th accountancy. You know very well in the last three videos, we discussed the chapter number 7, forfeiture of share and their ratio. In the last video, we discussed a numerical problem which are related to the forfeiture of share which are already issued at par, and thereafter we pass the journal entry related to the reissue of share. So you can see that in the last video we solve a numerical problem जिसमें शेयर पार पे इशू था, देर आफ्टर उस पर कॉल्सन एरर हुआ, कॉल्सन एरर के बाद कंपनी ने उस शेयर को फॉरफीट कर लिया and company passed the journal entry related to the forfeiture, and after the forfeiture of the share company reissued the forfeited share, and at the end of the question company find out the amount of share forfeiture account to the capital reserve account. Today we will solve the next type of practical problem in which the share are issued at premium, and you know very well when any company issued the share at premium, in this situation forfeiture of share will be based on the amount of premium. There are basically two situations you know very well. Forfeiture of share which are already issued at premium. So this is the second situation. लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया था ऐसे शेयर का फॉरफीचर जो किस पे इशू था, पार पे. बट टुडे वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वेयर we forfeit such share which are already issued at premium. In this situation, you know very well, the entry related to the forfeiture of share will be based on the receipt of amount of premium. The first situation, when premium amount is received, and number second situation, when premium amount is not received. Okay, so there are basically two situations when we forfeit such share which are already issued at premium. When any share issued at premium and the premium amount is received, in this situation the forfeiture entry will be share capital account debit to share forfeiture to calls in arrear. Okay, and when premium amount is not received, in this situation the journal entry will be share capital account debit security premium account debit to share forfeiture to calls in arrear. Okay, so there is a difference between the entries of the forfeiture which are already issued at premium. So we are focusing on these things कि प्रीमियम का पैसा मिला है कि प्रीमियम का पैसा नहीं मिला. अगर प्रीमियम का पैसा मिला है, so the entry will be passed same as the case number 1 when share are already issued at par, जैसा हम लोगों ने पहले किया हुआ है. बट जब शेयर प्रीमियम पे इशूड है और तब भी प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है, company does not receive any kind of the premium value, so in this situation the entry will be share capital account debit security premium debit to share forfeiture to calls in arrear. Okay, so now we will take the one practical problem related to this topic and solve it with the help of you. So let's start the numerical question. So the next question given on the screen that a company issued 1000 share of 10 each at a premium of rupees 5 per share, payable as 8 rupees including premium on application, 4 rupees on allotment and the balance on call, which are duly made. So according to the given information, you can see that कि कंपनी ने कितने शेयर इशू किए, 1000 शेयर. Okay, how many share issued by the company? That is 1000 share, and at the rate of 10 each, 10 रुपए का शेयर है, with 5 rupees प्रीमियम. कंपनी ने उस पर 5 rupees प्रीमियम भी पे किया है. So total value of the share is 15. 10 rupees शेयर का, 5 rupees प्रीमियम का, जिसमें से एप्लीकेशन पे है
that is the application value is 8 in which premium is include, so you can see that premium की value 5 हो गई और 3 rupees share की हो गई. Allotment पे कंपनी ने 4 rupees called up किए हैं and calls पे you know very well the calls value is balance you know very well, the issue price of the share is 15, 8 and 4 third 12 and 12 के बाद कितना बचा 3 rupees, बैलेंस आएगा ना 15 minus 12. Next is information, a shareholder to whom 100 share were allotted failed to the allotment and calls money. यानी कि एक बंदा था जिसके पास कितने शेयर्स थे, how many shares, he allotted 100 shares and failed to the allotment money and calls money. उसने allotment का भी पैसा नहीं दिया और calls का भी पैसा नहीं दिया. So this is known as the calls in arrear, you know very well. Allotment पे कितना नहीं दिया होगा, 100 multiplied by 4, that is a 400 rupees arrear on allotment, and on calls 100 rupees multiplied 100 share multiplied by 3, that is 300 rupees. So there's a calls in arrear on allotment 400 rupees and calls in arrear on calls, that is 300 rupees. And the company forfeited such share, company ने उस शेयर को forfeit कर लिया and the forfeited share was subsequently reissued as fully paid for 900. कंपनी ने 900 रुपए में फिर शेयर को रीइश्यू कर दिया. पास नेसेसरी एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉरफीचर एंड देयर रीइश्यू. क्वेश्चन में सारी एंट्रीज नहीं कह रहा है पास करने के लिए, सिर्फ कह रहा है कि आप एंट्रीज पास करो रिलेटेड टू द फॉरफीचर एंड रीइश्यू. So you know very well the first entry which are related to the forfeiture of share. Forfeiture of share. What is the entry related to the forfeiture of share? So one point is very important for you. सबसे बड़ी बात इसमें ये होगी आपके लिए, वो ये कि you know very well जब कोई शेयर प्रीमियम पे इशू होता है, when any share issued at premium, in this situation when we pass the entries related to the forfeiture, सबसे पहले द फर्स्ट ऑफ ऑल वी फोकस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द प्रीमियम, कि प्रीमियम का पैसा हमें मिला है कि नहीं मिला है. बेसिकली यही मतलब है. जैसे आपने देखा कि यहाँ कंपनी 100 शेयर को फॉरफीट कर रही है, तो 100 शेयर को जब फॉरफीट करने की वो एंट्रीज पास करेगी तो सबसे पहले वो ये देखेगी कि फॉरफीचर करने से पहले कि जो शेयर प्रीमियम पे इशूड है उस पर प्रीमियम का पैसा मिला है कि नहीं मिला. ये मैं बार बार समझा रहा हूं आपको. सो प्लीज लिसन केयरफुली एंड watch carefully. It is a very important part of the forfeiture of the share when share already issued at premium. यानी जब कोई शेयर प्रीमियम पे इशू है और उसकी हम फॉरफीचर की एंट्री पास कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि प्रीमियम का पैसा हमें मिला है कि नहीं मिला है. ठीक है, तो so let's we take the information given as per the question. You can see that कि 100 शेयर जिसको हम फॉरफीट कर रहे हैं उस शेयर पे एप्लीकेशन मिल चुका है, उस बंदे ने अलॉटमेंट नहीं दिया है, कॉल्स नहीं दिया है, यही दोनों नहीं दिया है. सो यू नो वेरी वेल कि जब हमें एप्लीकेशन मिल गया, प्रीमियम किसके साथ है, 5 रुपए जो कंपनी ने प्रीमियम मांगा है, कंपनी कॉल्ड अप 5 रुपीज एज अ प्रीमियम. सो प्रीमियम किसके साथ है, प्रीमियम विद एप्लीकेशन, प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ है. अगर एप्लीकेशन मिल गया तो प्रीमियम मिल गया, यस सर प्रीमियम मिल गया. अगर अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम होता और अलॉटमेंट पे एरियर होता तो क्या होता, प्रीमियम नहीं मिला. कॉल्स के साथ प्रीमियम है और प्रीमियम नहीं मिला है तो प्रीमियम किसके साथ है, कॉल्स के साथ, और प्रीमियम नहीं मिला है तो इसका मतलब प्रीमियम नहीं मिला. इट इज अ जस्ट काइंड ऑफ कॉमन सेंस कि हाउ विल यू जज द प्रीमियम अमाउंट रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड. सो बेसिकली टोटली डिपेंड ऑन द इंस्टॉलमेंट कि प्रीमियम की वैल्यू कहां मांगी जा रही है. अगर प्रीमियम की वैल्यू एप्लीकेशन पे मांगी जा रही है तो इसका मतलब एप्लीकेशन मिल गया तो प्रीमियम मिल गया. अलॉटमेंट मांगी जा रही है, अलॉटमेंट मिल गया तो प्रीमियम मिल गया. कॉल पे मांगी जा रही है तो कॉल मिल गया तो प्रीमियम मिल गया. बट इन दिस क्वेश्चन प्रीमियम इज कॉल्ड विथ एप्लीकेशन एंड जो 100 शेयर है वो एरियर कहां पे किया है बेचारा, उसने अलॉटमेंट पे और कॉल्स पे एरियर किया है. इसका मतलब प्रीमियम की अमाउंट रिसीव्ड हो गई है. तो इन दिस सिचुएशन द एंट्रीज रिलेटेड टू द फॉरफीचर ऑफ शेयर व्हेन प्रीमियम अमाउंट इज रिसीव्ड, यानी हमें प्रीमियम की अमाउंट मिल चुकी है. सो इन दिस सिचुएशन यू नो वेरी वेल एंट्री पास क्या होती है, द एंट्री विल बी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर
forfeiture to calls in area, ये हो गई forfeiture की एंट्री। हाउ मेनी शेयर फॉरफिटेड बाय द कंपनी? 100 शेयर। और कितनी वैल्यूज कॉल्ड अप की गई है अभी तक? एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम को इंक्लूड नहीं करेंगे, ये बात याद रखिएगा। शेयर कैपिटल हमेशा डेबिट कितने से होता है? अपनी फेस वैल्यू से। कॉल्ड अप वैल्यू, और कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है? 3 रुपीज शेयर, 4 रुपीज शेयर, 3 रुपीज शेयर, तो 437 प्लस 3 दैट इज 10। सो कंपनी ने अभी तक शेयर की वैल्यू कितनी मांगी है? 1000, क्योंकि प्रीमियम तो मिल चुका है। जब प्रीमियम मिल चुका है तो प्रीमियम से कोई लेना देना नहीं। अब फॉर फ्यूचर एरियर में क्या लिखते हैं? जितना नहीं मिला, तो कितना नहीं मिला? 400 प्लस 300, टोटल कितना वैल्यू रिसीव नहीं हुई? 700। सो 1000 में से 700 वैल्यू रिसीव नहीं हुई है, तो कितनी मिल चुकी होगी? 300 रुपीज। सो दिस इज द एंट्री रिलेटेड टू द फॉरफीचर ऑफ शेयर। यानी जब कंपनी ने 100 शेयर को फॉरफीट किया, क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ क्वेश्चन में पूछा गया है पास नेसेसरी एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉरफीचर एंड देयर इशू इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। आपको सिर्फ एंट्री पास करनी है फॉरफीचर और उसके रीइशू से रिलेटेड। और जब फॉरफीचर करते हैं और जो शेयर ऑलरेडी प्रीमियम पे इशू है, तो हम ये देखते हैं कि प्रीमियम का पैसा मिला है कि नहीं मिला है। अगर प्रीमियम का पैसा मिला है तो जस्ट वैसे ही को एंट्री पास करते हैं जैसे हम पहले करते आए हैं लास्ट क्वेश्चंस में। उसमें हम ये भूल जाते हैं कि प्रीमियम नाम की कोई चीज थी, तो हम शेयर को ऐसे ही ट्रीट करते हैं जैसे वो पार का है, क्योंकि प्रीमियम हमने मांगा, प्रीमियम मिल गया, सो कोई इशू ही नहीं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। प्रीमियम नहीं मिलता तो दिक्कत की बात आती। ये हो गया फॉरफीचर ऑफ शेयर। नंबर 2, आफ्टर द फॉरफीचर ऑफ शेयर हम शेयर को क्या करेंगे? री इशू ऑफ शेयर। उसी शेयर को क्या करेंगे? री इशू ऑफ द फॉरफीटेड शेयर, यानी जो शेयर को फॉरफीट किया है उस शेयर को रीइशू करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू कैन सी दैट द फॉरफीटेड शेयर वे सब्सिक्वेंटली रीइशूड एट फुल्ली पेड अप फॉर 900, यानी उस शेयर को फिर रीइशू किया। तो रीइशू की एंट्रीज यू नो वेरी वेल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मैंने तो आपको ऐसे ही ट्रिक सिखाया है। सो व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द शेयर? दैट इज 1000। फुल्ली पेड अप वैल्यू 10 रुपीज का शेयर है, और कितने शेयर इशू कर रहे हैं? 100। भाई उतने ही शेयर रीइशू कर सकते हैं जितने फॉरफीट किए। तो कंपनी ने कितने शेयर फॉरफीट किए? 100। तो रीइशू भी कितना कर सकता है? 100 और उसकी फुल्ली वैल्यूज कितनी है? 10। और रीइशू कितने पे हो रहा है? 900। तो यू कैन सी दैट, अब आप खुद फाइंड आउट करो रीइशू किस पे हो रहा है, पार पे, प्रीमियम पे, के डिस्काउंट पे। सो वी कैन सी दैट कंपनी ने शेयर इशू किया, रीइशू किया 1000 का, बट पैसा आया 900 रुपीज। सो इन दिस सिचुएशन कंपनीज रीइशूड ऑफ फॉरफीटेड शेयर एट डिस्काउंट, एंड 100 रुपीज का जो कंपनी को लॉस हुआ है इट विल बी बोर्न बाय द शेयर फॉरफीचर अकाउंट। इसको हम लोग किसके हेल्प से एडजस्ट करेंगे? शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ओके, यस सर, इट इज वेरी इजी। सो यू कैन सी दैट जब हमने शेयर को फॉरफीट किया था तो फॉरफीचर में हमें प्रॉफिट कितना हुआ था? 300। जब शेयर को रीइशू किया तो कितना लॉस बियर करना पड़ा? 100 रुपीज। सो इन दिस सिचुएशन हमारे फॉरफीचर अकाउंट में बैलेंस कितना है सर? 300 प्रॉफिट हुआ, दैट इज अ कैपिटल प्रॉफिट ऑन द फॉरफीचर ऑफ द शेयर, and there is a capital loss on the reissue of the forfeited share, and the balance amount will be transferred to the capital reserve. So the entry will be share forfeiture account debit to capital reserve, and the amount will be 300 minus 100, that is 200. Okay, so this is the solution of the question which are related to the forfeiture of share which are issued at premium, and in this situation we find that the premium amount is received. So now we will move to the second type of this situation, that is when premium amount is not received. Okay, so please note down and take a screenshot of this question. This is a full solution of this question. Firstly, we forfeit the share. Before the forfeiture of share, we identify the premium amount is received or not received. So according to this question, we received application money and premium money called with the application, though said that's why premium amount is received. So the entry will be this. Thereafter, we reissue the forfeited share, and thereafter the balance of for share forfeiture account transferred to the capital reserve account. So now we will move to the next part of this case, that is a forfeiture of share when premium amount is not received.
The next question, illustration number 25, when premium on forfeited share is not received. So it is the second situation of the second case. You know very well, there are basically two cases. The first case, forfeited of share which are issued at par. In the second case, when forfeiture of share which are issued at premium. And in the second case, we have see that the two categories when premium on forfeited share is received, और इससे रिलेटेड अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया जिसमें शेयर प्रीमियम पे इशू था और प्रीमियम का पैसा हमें मिल भी गया था. बट दिस इज अ सेकंड कैटेगरी ऑफ सेकंड सिचुएशन, दैट इज व्हेन प्रीमियम ऑन फॉरफिटेड शेयर इज नॉट रिसीव्ड. सो व्हाट इज द क्वेश्चन? A company issued 10,000 share of 10 each at a premium of 5 per share. यानी कंपनी ने, question number 25, according to the question, first of all we note down all the important topics, important points related to this question. कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया at the rate of, शेयर की वैल्यूज है 10 and with a premium, with 5 rupees of premium, so the total value of the share is 15. Okay, payable as 5 on application. एप्लीकेशन पे कितना है, दैट इज अ 5 रुपीज. अलॉटमेंट पे कितना पैसा मांगा है कंपनी ने, 7 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम, 7 रुपीज ऑन इंक्लूडिंग प्रीमियम. सो दैट्स वाई द प्रीमियम की वैल्यू 5 रुपए हो गई और 2 रुपए की शेयर की वैल्यू हो गई. इट इज अ वेरी कॉमन सेंस. कंपनी ने 5 रुपए प्रीमियम इशू किया है और प्रीमियम किस में है, अलॉटमेंट पे. तो 7 रुपीज में 5 रुपीज प्रीमियम है तो 2 रुपए शेयर का होगा. एंड द बैलेंस ऑन कॉल्स, कॉल्स पे कितना होगा, तो यू कैन एडप्ट 7 plus 5 12, टोटल वैल्यू कितनी 15. सो द बैलेंस विल बी 3 रुपीज. हाउ, 15 minus 12, 7 5 10. Okay, now what is the information? A shareholder to whom 100 share were allotted failed to pay the allotment and call money. एक बंदा था जिसके पास 100 शेयर है और उस बंदे ने एरियर कर दिया. एरियर किस पे किया है, सो उसने फर्स्टली एरियर किया अलॉटमेंट पे और दूसरा उसने एरियर किस पे किया है, कॉल्स पे. सो एरियर कितना आएगा, अलॉटमेंट पे 100 मल्टीप्लाइड बाई 7, दैट इज 700 रुपीज. एंड कॉल्स पे आएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई 3, दैट इज 300 रुपीज. सो दिस इज एन कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर. ओके, ऑन अलॉटमेंट 700 एंड ऑन कॉल्स 300 रुपीज. इज दैट क्लियर? 100 रुपए का शेयर, 100 शेयर था एक बंदे के पास जिसने अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दिया. So you can see that this situation is related to the premium amount is not received because you know very well premium किसके साथ है, प्रीमियम सर अलॉटमेंट के साथ है. और जो बंदा शेयर जो एरियर किया है जिसके पास 100 शेयर है उसने अलॉटमेंट भी नहीं दिया, कॉल भी नहीं दिया. इसका मतलब अलॉटमेंट नहीं दिया यानी 2 रुपए शेयर का नहीं दिया और 5 रुपए प्रीमियम का भी नहीं दिया, यानी उसने प्रीमियम का भी पैसा नहीं दिया और अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं दिया बेसिकली. यानी उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, इसका मतलब उसने प्रीमियम नहीं दिया. सो क्लियर हो गया कि हाउ विल वी आइडेंटिफाई कि प्रीमियम अमाउंट इज रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड. नेक्स्ट द इंफॉर्मेशन इज एंड हिज शेयर वेयर फॉरफिटेड, उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया गया. द फॉरफिटेड शेयर वेयर सब्सिक्वेंटली रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप फॉर 1200, फिर उस शेयर को रीइश्यू कर दिया गया. कितने में रीइश्यू किया, 1200. रेफरिंग टू above, what will the last journal entry if the forfeited were reissued as fully paid up for 100 rupees. यानी पहले आपको फॉरफिटेड शेयर को 1200 पे रिकॉर्ड करना है तो यहां तक आपको जर्नल एंट्री पास करनी है. और फिर एक अलग से इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट विल बी द लास्ट जर्नल एंट्री, जो कैपिटल रिजर्व की जर्नल एंट्री होती है, दैट इज द अमाउंट ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व वेयर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप फॉर ₹800. यानी आपको शेयर को 2 बार इशू करना है. एक बार 1200 रुपए पे इशू करना है 1200 रुपीज पे, तो फाइंड करना है कि कैपिटल रिजर्व की अमाउंट कितनी आई होगी. और एक बार उसी क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करके बताना है कि अगर हम शेयर को 800 पे इशू करते, इस शेयर को 800 पे इशू करते तो हमें कितना कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता. तो आप इस क्वेश्चन में 2 सिचुएशन दिए, केस ए कह लो और केस बी कर लो. इन केस ए रीइश्यू ऑफ शेयर कितने पे हो रहा है, ₹1200, और दूसरे बार कंपनी रीइश्यू कर रही है रीइश्यू ऑफ शेयर दैट इज 800, और दोनों के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है. यस सर, तो कोई बात नहीं है, जैसा आप पहले एक बार इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर फॉर फ्यूचर अमाउंट निकालो, फिर उसके बाद दूसरे सिचुएशन के अकॉर्डिंग आंसर निकालना होगा आपको जब आप शेयर को 800 के अकॉर्डिंग सॉल्व. तो अभी इसको इतना माइंड नहीं करते हैं,
पहले हम लोग एंट्रीज स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द एप्लीकेशन टू द कॉल्स, फिर फॉरफीट करते हैं। इतना तो काम पहले करते हैं, पहले एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल्स, एप्लीकेशन पे एरियर को शो कराते हैं, कॉल्स पे एरियर को शो कराते हैं, फिर शेयर को फॉरफीट करते हैं। उसके बाद हम रीइश्यू के बारे में टेंशन लेंगे, अभी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। So you know very well first entry किससे related होगी? The first entry which are related to the application. So the first entry is bank account debit to share application. How many share issued by the company? 10,000. And what is the application money? That is 5. So company received application for rupees 50,000. So the first entry is clear. Second entry, you know very well, share application account debit to share capital, that is 50,000. Number third entry, we called allotment, share allotment account debit to share capital to security premium reserve. Yes sir. Why? Because I know कि शेयर किस पे इशूड है? प्रीमियम पे, और प्रीमियम किसके साथ? अलॉटमेंट के साथ। तो जब हम अलॉटमेंट कॉल्ड अप करेंगे तो उसके साथ प्रीमियम भी कॉल्ड अप करेंगे। हाउ मेनी शेयर इशूड बाय द कंपनी? 10,000. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द शेयर? दैट इज 2, 20,000। एंड प्रीमियम की वैल्यू देखो 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 5। प्रीमियम कितने से? 5। दैट इज द टोटल, दैट इज 50,000। सो द टोटल अलॉटमेंट दैट इज 70,000। नंबर 4, यू नो वेरी वेल, कंपनी ने क्या किया? जब अलॉटमेंट मांगा, उसके बाद जब अलॉटमेंट रिसीव हो रहा है तो यू कैन सी दैट इन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अलॉटमेंट पे एरियर कितना है? 700। तो एरियर अकाउंट ओपन ही कर लो, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब यू कैन सी दैट अलॉटमेंट कितने से कॉल्ड अप किया गया? 70,000 से। एरियर कितना हो गया? 700। सो द वैल्यू रिसीव 69,300। इट इज वेरी इजी। फिर हम लोग क्या करेंगे? After the allotment, we call the calls money. So the entry will be share calls account debit to share capital. क्या calls पे कोई प्रीमियम है? No sir, only 3 rupees. कोई प्रीमियम नहीं है। That is 10,000 multiplied by 3, that is 30,000. फिर allotment पे भी एरियर है? Yes sir, allotment पे भी एरियर है। So entry क्या होगी एरियर की? Bank account debit, calls in area debit to share calls. Yes sir. Calls पे भी एरियर है। कॉल्स पे कॉल्ड अप कितना किया गया था? 30,000। ओके, एंड एरियर ऑन कॉल्स दैट इज 300। सो द वैल्यू रिसीव 29,700। 30,000 में 300 एरियर हो गया तो मिला कितना होगा? 29,700। दूसरे अलॉटमेंट में देखो कॉल्ड अप कितना किया है? 70,000। एरियर कितना है? 700। सो द वैल्यू इज 69,300। सो मैंने क्या किया? एप्लीकेशन रिसीव किया, उसको ट्रांसफर कर दिया। अलॉटमेंट कॉल्ड अप किया विद प्रीमियम, उसको रिसीव किया, उसमें कुछ एरियर था। एंड देयर आफ्टर कंपनी ने कॉल किया और कॉल्स को रिसीव किया, उसमें कुछ एरियर था, उसको रिकॉर्ड कर दिया। अब नाउ द नेक्स्ट टास्क इज, नेक्स्ट टास्क क्या है? द नेक्स्ट टास्क इज फॉरफीचर ऑफ द शेयर। सो यू कैन सी दैट कंपनी ने जो शेयर इशू किया है वो प्रीमियम पे है और प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है। सो यू नो वेरी वेल व्हाट एंट्रीज आर पास्ड व्हेन प्रीमियम अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड। सर अभी तो आपने बताया, the entry will be share capital account debit, security premium account debit to share forfeiture to calls in arrear. So let's we pass the entries. That is the entry number 7, forfeiture की entry. You know what is the entry of forfeiture when premium amount is not received? Share capital debit, security premium reserve debit to share forfeiture account to calls in arrear. Okay, so it is very easy. First of all, you know very well how many share forfeited by the company? The total 100 share forfeited by the company. और कंपनी का फेस वैल्यू कितना था? 10। कॉल्ड अप वैल्यू कितनी थी? 10 रुपीज एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। ये बात याद रखना है, शेयर कैपिटल डेबिट होता है विथ कॉल्ड अप वैल्यू एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। प्लीज नोट डाउन इट। When we pass the entries of forfeiture, in this situation share capital account debited by the कॉल्ड अप मनी एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, उसमें प्रीमियम इंक्लूड नहीं करते हैं। कितना पैसा मांगा बट प्रीमियम को नहीं लेंगे। तो कंपनी ने एप्लीकेशन मांगा, अलॉटमेंट मांगा, कॉल्स मांगा, टोटल 15 रुपीज मांगा, जिसमें 5 रुपीज प्रीमियम, तो उसमें कितने से मल्टीप्लाई होगा? 10 रुपीज से। और प्रीमियम में हम लोग क्या लिखते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जितना प्रीमियम का पैसा नहीं मिला। तो 100 शेयर पे कितने रुपीज प्रीमियम था?
₹5 का प्रीमियम था, तो ₹500 प्रीमियम का नहीं मिला होगा। आप कॉल सिनेरियो में कितना लिखेंगे? फर्स्ट कॉल पे अलॉटमेंट पे एरियर कितना था? 700, और you can see that in this segment 700 on area on allotment and 300 area on calls. The total area will be 1000. So you can see that 1500 में से 1000 एरियर है तो कंपनी ने रिसीव कितना किया होगा? 500. So you can see that कंपनी ने 1000 प्लस 500 1500 रुपीज मांगा, जिसमें से 1000 नहीं मिला तो 500 मिल गया होगा। फॉर फ्यूचर में क्या लिखते हैं? जितना पैसा मिल गया है। अब आते हैं रीइश्यू। अब पहला केस लेते हैं यहाँ पे, ए, रीइश्यू ऑफ शेयर फॉर ₹1200। जब हमने शेयर को किस पे रीइश्यू किया? 1200 रुपए पे, 1200 रुपीज पे। सो द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ओके, हाउ मेनी शेयर विल बी रीइश्यूड? सारे शेयर इश्यूड हो गए, 100 इंटू 10, यू नो वेरी वेल 1000। रीइश्यू कितने में किया? 1200। या आप बताओ सर, ये तो फायदा हो गया, 1000 रुपए का शेयर 1200 रुपए में रीइश्यू हो गया। सो इट इज नोन एज द रीइश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। और प्रीमियम को हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट, सिक्योरिटी प्रीमियम, दैट इज 200। You know very well, when any share reissued at premium, in this situation the entry is same. And number 2, you know very well, दूसरा situation क्या पूछा है? When reissue of share for ₹800, जब आपने शेयर किस पे रीइश्यू किया हो? 800 रुपए में। So in this situation, okay, so 800 पे रीइश्यू करेंगे तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सो यू कैन सी दैट 1000 का शेयर गया, पैसा कितना आया? 800। सर 200 रुपए डिस्काउंट है। सो यू कैन सी दैट इन द फर्स्ट सिचुएशन कंपनी रीइश्यूड इट्स शेयर at premium, and the second situation company reissued its share at discount. So you know very well, discount के केस में प्रीमियम की वैल्यू किससे एडजस्ट होती है? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से। यस सर, क्लियर हो गया। सो इन दिस सिचुएशन आपने एंट्री नंबर 8 केस नंबर ए से भी सॉल्व कर दिया, केस नंबर 2 से भी सॉल्व कर दिया। अब फैक्ट इज कैपिटल रिजर्व की अमाउंट कितनी आएगी? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। So you can see that the first column on your left side, which are related to the detailed description of the question, and the entries related to the share application one. And numbers in the second mid column, you can see that the entries related to the application, allotment, and calls with their areas. And in the third section, you can see that the entries related to the forfeiture and reissue of the share in both of the situation. Okay, so now at the end of this question, now we will calculate the amount of capital reserve transferred from the share forfeiture account after the reissue of share. Because in this question we have see that they are basically two situation. एक सिचुएशन है जब कंपनी अपने शेयर को किस पे इशू करी है? 1000 पे, और एक सिचुएशन जब कंपनी अपने शेयर को किस पे इशू कर रही है? फॉर ₹800 पे। ओके, सो 1200 पे अगर इशू करती है तो कितना कैपिटलिज्म में ट्रांसफर होगा, और अगर 800 रुपए में इशू करती है तो कितना कैपिटलिज्म में ट्रांसफर होगा? वो दोनों की एंट्रीज हम लोग एंट्री नंबर 9 में पास करेंगे। ओके, सो द फर्स्ट सिचुएशन, फर्स्टली वी फॉरफीट द शेयर, देयर आफ्टर वी रीइश्यू द शेयर। सो सपोज फर्स्टली हमने शेयर फॉरफीट किया तो फॉरफीचर पे हमें प्रॉफिट कितना हुआ? 500। एंड इन केस नंबर 1 वी रीइश्यूड द फॉरफीटेड शेयर एट प्रीमियम। सो क्या 500 रुपए में से एक भी रुपए यूज हुआ है? नो सर। इन द फर्स्ट सिचुएशन द एंट्री नंबर 9, यू कैन सी दैट केस नंबर ए में अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व फ्रॉम शेयर फॉरफीचर अकाउंट व्हेन शेयर रीइश्यूड फॉर ₹1200। यानी आपको पहली एंट्रीज मैं बता रहा हूं कैपिटलिज्म में ट्रांसफर की, जब आप शेयर किस पे इशू कर रहे हो? 1200 रुपए में। यानी इस सिचुएशन में यू कैन सी दैट 500 रुपए प्रॉफिट हुआ है, बट रीइश्यू में एक भी रुपए आपका यूज नहीं हुआ। सो द एंट्री विल बी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व।
कितना? द टोटल वैल्यू ऑफ ₹500. सो इन द फर्स्ट सिचुएशन यू कैन सी दैट पूरी वैल्यू कितनी ट्रांसफर हुई है कैपिटलिज्म में, दैट इज 500, बिकॉज एक भी रुपए आपका यूज नहीं हुआ. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड increase, in the second case when reissue of share for ₹800, यानी जब when share reissued at और for ₹800, यहाँ पे शेयर कितने पे इशू हुआ है, कितने पे इशू हुआ है 800 पे. तो यू कैन सी दैट प्रॉफिट कितना हुआ था फॉर फ्यूचर पे 500, लॉस रीइशू के टाइम कितना एडजस्ट हो गया 200. तो कंपनी के पास कितना पैसा बचा सर 500 minus 200 equals to 300 in the case number 2. So the in the second case you can see that amount transferred to the share forfeiture account, that is a 300. So आप देख रहे हो रीशूट की वैल्यू चेंज होने से कैपिटल रिजर्व में अमाउंट की वैल्यू भी चेंज हो जा रही है, क्योंकि फर्स्ट सिचुएशन में शेयर किस पे इशू हुआ था, प्रीमियम पे, और सेकेंड केस में शेयर किस पे इशू हुआ था, डिस्काउंट पे. तो प्रीमियम के केस में एक भी ₹500 का यूज नहीं हुआ, सो पूरा पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया. बट केस नंबर 2 में आपने शेयर इशू किया था डिस्काउंट पे, जिसके कारण आपको ₹200 का लॉस बियर करना पड़ा था. वो ₹200 कहां से एडजस्ट हुआ, 500 minus 200 equals to 300. So please note down these two entries of that is the last entry of this question, amount transferred to the capital reserve in both of the situation, the situation number 1 and situation number 2. In case number 1 you will pass this entry, and in case number 2 you will pass this entry. So I hope it is very clear for you. So I hope today we cleared all the topics very easily, and I requested to all the students, please solve the exercise question given in the book. Okay, so thank you, thanks a lot.